Fabulous performance. I would request all the guests to enlighten the lamp of Devi Saraswati. Please, all the members. Mr. and Mr. Arora, Bandari sir, Madhu sir. हम सभी उस अलौकिक शक्ति, अदृश्य शक्ति को याद करें और धन्यवाद करें कि हमें यह सुंदर जीवन मिला है। दिनेश सर प्लीज। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। मन से हमारे मिटा दो अंधेरा, उजालों का हमको संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर ये जग हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है, उसी ने इतिहास रचा है।
So without wasting our precious time now, I would like to request our Honorable Principal Ma'am to welcome all the guests. Namaste to all. Honorable Chief Guest, Shri Tarun Bajaj, IAS, Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Government of India. Param Pujya Guruji Maharaj, dear SP Arora, retired ADC Panchkula, respected Mrs. and Mr. President Sir, our Secretary Sir, Shri Vijay Bhutani ji, members of Management Committee, all distinguished guests, my dear teachers, staff, and students. I welcome you all at the event of book release 26 Chakke, authored by Shri Bachchan Ram Arora. He is an eminent lawyer and prominent social figure. He is president of Bhagwan Das Memorial Educational and Cultural Society and Panchatirthi Senior Secondary Public School run by this society. The book 26 Chakke is a compilation of short stories authored by Shri Bachchan Ram Arora. The short stories are inspired by the lifetime experience of the author. The book not only caters to purpose of joy of reading, but also drives so many social messages. Though I have not read the book, however, a cursory look of book made me wiser. I offer my heartfelt congratulations to our President Sir on behalf of PPS family at this great success. पंचतीर्थी परिवार ने प्रेसिडेंट सर के जीवन से हमेशा से ही उत्साह और प्रेरणा को पाया है और हमारा सौभाग्य है कि हम सबको उनकी उंगली पकड़ के जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिला है और ये बुक भी अपने पाठकों का ऐसा ही मार्गदर्शन करने वाली है. Now I would like to invite Mr. S.P. Arora to introduce the honorable chief guest and to address the audience and ऑनलाइन अटेंडेंस. नव वर्ष पर ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद. Thank you, Madam Principal. Good morning and Happy New Year to you all. Do you know that today is the 75th birthday of the President Shri B.R. Arora? May I request everybody to give a applaud? Thank you, ma'am. ईश्वर ने भी कीमती रत्न गिनती के ही बनाए होंगे और रत्नों में सबसे कीमती आज हमारे बीच आए हैं. Now I would like to request Mr. Satpal sir. Thank you very much. Am I audible? Just wait for one minute. Yes. Satpal sir is going to be online. Am I audible? Yes, Chacha ji, you are audible. Okay, please. Good morning and Happy New Year to you all. Is going to be released our book. It's my proud privilege to welcome Shri Tarun Bajaj ji, an IAS of the state of Satpal sir will introduce afterwards the releasing of the book in front of you all. Nowadays, working as the Secretary to the Government of India, Ministry of Finance, Shri Tarun Bajaj ji is known for his simplicity, humility, and dedication to service. He has the distinguished career. He has been the Deputy Commissioner of Greens and Cattle. Firstly, he will be online in front of you all. I'm sorry. Sir. We are audible, but I can't audible. I can hear you. Yes, sir, you can, but the audience is not. Just one second.
स्पीकर की प्रॉपर Good morning to you all. Happy New Year. And may I disclose that today is the 75th birthday of Shri Bachanram Arora ji, the president of the society, my eldest brother, my mentor and my source of inspiration. May I request you all to congratulate him on this birthday. I hope I am audible now, Dinesh. No, there is a problem. Chacha ji, you are audible. Yes, We you are can audible. hear Yes, you. you are audible. Okay, please. Now it is my proud privilege to welcome Shri Tarun Bajaj ji, an IAS of the state of Haryana, nowadays Secretary to the Government of India, Ministry of Finance. I am living with Shri Tarun Bajaj ji since 1995, and it is my proud privilege to be in his company. Shri Tarun Bajaj ji is known for his simplicity, humility, dedication and sincerity to the service, and probably symbol of honesty in this country. He has been the Deputy Commissioner of Cathal and Jeend, beside the Commissioner of your Rohtak Division. He has been the Additional Secretary to the Prime Minister of India, which is a very great honor for all of us. I, sir, feel very proud to welcome you to this institute. And may I, sir, give a very little background. This school was established by none else but Shri Bachanram ji Arora by his singularly dedicated effort, because he has been a devotee of Swami Amardev ji Maharaj, Shri 108, who has been the guru of this family. And in order to keep the memory of his great late father, Shri Bhagwan Das ji, he has kept this society, and the society he has established this school, which has already completed more than 25 years and celebrated Silver Jubilee. As I said earlier, Shri Bachanram Arora ji has been my elder brother, but is a source of inspiration and has been my mentor throughout. Probably Shri Tarun Bajaj ji also knows something about it. Sir, there can't be any better occasion than this, that you were very kind to agree to release this book, which is titled as 26 Chakke. Though I have also not yet gone through the book, but I am sure the first 5 pages, that is Lekhak ki kalam se and Mitti, would definitely convey the intent and intention of the writer. He is a person who is known for humility and generosity and has been serving the society with dedication. This school is the creation of that dedication, that he wanted to create an institute for the surrounding rural residents who could come and take education and bright their future. But I won't take much time, because I know, in spite of your very busy schedule, you have been very kind to give some time. I hand over the mic to you and request you to formally release the book and say a few words about the institution. Thank you very much, sir, and very kind of you. Sir, probably you are mute, sir. Yes, sir. So, at this point of time, I am required to speak. Is that right? Shri B.R. अरोड़ा जी, अरोड़ा परिवार के सभी सदस्यगण, मैं सतपाल जी को अपने वीडियो पे देख सकता हूं। उनके दोनों सुपुत्र यहाँ पर शामिल हुए हैं। मेरे को अब अंबिका जी भी नजर आ रही हैं, वो शायद अमेरिका से हम इसमें शामिल हो रही हैं। वहां देर रात्रि होगी, लेकिन बच्चों से यही अपेक्षा है कि वो चाहे रात हो या दिन हो, अपने पेरेंट्स के लिए साथ खड़े रहें। मैं
कोशिश करूंगा आपसे हिंदी में बातचीत करने की। ये किताब 26 छक्के हिंदी में लिखी गई है, तो मेरा प्रयत्न होगा आपसे हिंदी में 2 बातें करूं। स्कूल की प्रिंसिपल मैडम किरण भूटानी जी, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। ये मेरे जीवन का शायद पहला ऐसा मौका है जब मैं कोई पुस्तक को रिलीज किया है, और इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। शायद थोड़ा सा विघ्न भी डाला ये रिक्वेस्ट करके कि इसको आधा घंटा प्रीपोन किया जाए, क्योंकि मुझे कहीं जाना था, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके कार्यक्रम में जितना शामिल हो सकूं उतना मैं इसमें शामिल हूं। सतपाल जी ने जैसे आपको बताया कि मेरी और उनकी पहचान 1995 में हुई थी, तो हमारी भी ये इस साल सिल्वर जुबली है पहचान की। तो साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि हम मिले तो अपने कार्यालय में थे, जहां पर मैं एडिशनल कमिश्नर था, वहां इनकी पोस्टिंग हुई थी। लेकिन शीघ्र ही हमारे संबंध घरेलू बन गए, परिवार के संबंध बन गए, और इन हिमांशु और हिमानी को मैंने बिल्कुल छोटे से बड़ा होते देखा है। तो मुझे इनसे काफी जब घनिष्ठता हुई, इनसे बातचीत हुई, तो मुझे ऐसे लगता था जैसे इनका परिवार मेरा ही परिवार है, इनके भाई मेरे भी भाई हैं, और शायद मैं उनको काफी हद तक जानता हूं। लेकिन मुझे भी ये 5-6 जो पृष्ठ पढ़ने का मौका मिला, क्योंकि जब मधुर मेरे पास ये पुस्तक देने आया था, आप किताब नहीं पढ़ेंगे जब तक ये रिलीज नहीं होती है, तो सतपाल जी ने मुझे इसके पहले 6 पृष्ठ शायद भेजे हैं, तो मैंने उनको पढ़ा तो मुझे लगा कि मैं इनको कितना कम जानता। बिल्कुल धरती से उठे हुए, बहुत अपने जीवन में स्ट्रगल करते हुए, बिल्कुल नीचे से मेहनत करके, अपनी कड़ी मेहनत करके ऊपर उठे हुए, और इन्होंने क्या कामयाबी हासिल की है। और अपने जीवन में जैसे इन कहानियों में इन्होंने छक्कों का वर्णन किया होगा, तो मुझे लगता है कि इनका अपना जीवन में भी इन्होंने एक बहुत जोर का छक्का लगाया है कि ये कहां से कहां पहुंचे हैं। और साथ ही साथ इनके परिवार में मैं इनके बाकी भाइयों को भी जानता हूं, तो मुझे लगता है कि हर एक ने अपनी तरफ से बहुत मेहनत की है, और अपनी जो ऊंचाइयों को हासिल किया है वो अपनी मेहनत से किया है। तो ये बिल्कुल ढंग का छक्का लगा है, चाहे इसको अंपायर देख रहे हो, चाहे इसको 10 प्लेयर देख रहे हो, लेकिन ये सच्चा और बिल्कुल अच्छा छक्का है। ये मैंने जैसे कि कहा कि मैं इसको पढ़ूंगा, वो जो पहले 6-7 पृष्ठों में इसका जो वर्णन है वो काफी इंटरेस्टिंग है, रोमांचक है कि ये किस तरह की कहानियां लिखी होंगी। शायद हमें भी, मैं इसको, इन्होंने कहा है कि आपको लगेगा कि क्रिकेट से संबंधित है, ये क्रिकेट से संबंधित नहीं है, इसकी बात उन्होंने की है। लेकिन मुझे नहीं मालूम है, हिमांशु है यहाँ, दिनेश है, मधुर है, मुझे हिमानी भी नजर आ रही है। लेकिन जब भी मैं धोनी को छक्का लगाते देखता था तो मेरा मन भी करता था कि मैं भी मैदान में छक्का लगाऊं। लेकिन मेरी बॉल में तो मतलब कि वो नजदीक के फील्डर तक ही जा पाती थी, तो मुझे इस बात की निराशा होती थी कि मैं छक्का नहीं लगा पाया। लेकिन आपके ये प्रश्न पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हम अपने जीवन में जहां पर भी हैं, जिस कार्य को कर रहे हैं, चाहे अपने परिवार की हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या कार्यालय में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, अगर हम वो काम निष्ठा से करें, मेहनत से करें, और उसको उस मुकाम पे पहुंचाएं जिस मुकाम पे पहुंचाने की जरूरत है, तो वो हमारे अपने क्षेत्र का हमारा अपना छक्का होगा। और हमें B.R. अरोड़ा जी से और इस परिवार से ये प्रेरणा लेनी चाहिए, हाँ भी अपना कार्य करें, निष्ठा से करें, और अपने जीवन में इसी तरह से
जिस तरह से इनके जीवन में इनका अपना जो करियर पाथ रहा है उसमें इन्होंने छक्का लगाया है, हम भी उसी प्रकार से ये छक्के लगाएं। मैं चाहूंगा कि ये पुस्तक आप सब पढ़ें, मैं भी पढ़ूंगा, और फिर हम जब दोबारा मिलेंगे तो इस पर चर्चा करेंगे कि ये कैसे छक्के थे। कुछ ठीक छक्के थे, कुछ गलत आंख छुपा के मारे हुए छक्के थे, शायद उनका वर्णन भी है। मैं जब आपको मिला था हिमांशु के विवाह के कार्यक्रम में, तो आपने मुझे बताया था कि आपने ये पुस्तक लिखी है, और सबसे अच्छी बात ये थी, मुझे लगा कि शायद आपने शायद अपने जीवन पर अपनी कहानी लिखी होगी, लेकिन आपने कहा कि नहीं, ये मैंने जो आम आदमी को देखते हुए, जो मेरी ऑब्जर्वेशंस रही हैं लोगों के बारे में, उसको देखते हुए मैंने ये पुस्तक लिखी है। तो मैं इंतजार कर रहा हूं कि मैं इसको पढूं और फिर आपसे जब अगली बार मिलूं तो इसके बारे में आपसे चर्चा करूं। मैं यहाँ पर और ज्यादा ना कहते हुए, सबसे पहले मेरे से जो गलती हो गई उसके लिए, आपका ये जन्मदिन है, उसकी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ईश्वर आपको लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत दे, यही हमारी प्रभु से प्रार्थना रहेगी। और ये भी एक बहुत बड़ी बात है, मुझे स्कूल की बिल्डिंग में आने का मौका तो नहीं मिला है, लेकिन मैं आपको बैठे हुए और आपके पीछे स्कूल की बिल्डिंग को देख रहा हूँ। बहुत भव्य स्कूल बिल्डिंग नजर आ रही है, स्कूल की बसेस भी हैं। तो हाँ, अब मुझे पूरा उसका घुमा के दिखाया जा रहा है। तो मुझे इस बात का भी आपके लिए बहुत इज्जत मेरे लिए पहले भी थी, लेकिन और ज्यादा ये बढ़ गई है ये देखते हुए कि इतना बड़ा स्कूल आपने अपने क्षेत्र में बनाया और अपने बच्चों को पढ़ाने में आप मदद कर रहे हैं। ईश्वर करे आपको और शक्ति मिले और इस स्कूल को आप और आगे बढ़ाएं। मेरी आपको इस जन्मदिन पर, इस पुस्तक के विमोचन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक बात जो हम ये जो ऑनलाइन प्रोसेस है, इसको भी मैं कहना चाहूंगा कि ये भी एक इंटरेस्टिंग, और इसका जो प्लस पॉइंट है वो आज हमें देखने को मिल रहा है कि अगर मैं फिजिकली वहां होता तो शायद अंबिका बेटी ना ये कार्यक्रम देख पाती, लेकिन आज इसकी वजह से अंबिका भी हमारे कार्यक्रम में शामिल। तो कुछ माइनसेस हैं लेकिन कुछ प्लसेस भी हैं। मैं एक बार फिर आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, मुझे शामिल होने का मौका दिया। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं 5-10 मिनट इस कार्यक्रम में और शामिल होना चाहूंगा। मुझे हंसते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे जो नजर आ रहे हैं, इनका अगला 10 मिनट मैं शामिल होना चाहूंगा। उसके बाद मेरी एक मीटिंग है, मैं उसके बाद जाना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी, मैं एक चीज भूल गया था। ये मेरे को नजर आ रहा होगा, ये मेरा मोमेंटो है, जिसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने अभी खोला इसको तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये इसमें सारे मॉन्यूमेंट्स जो हैं हमारे देश के, उनका वर्णन है। और बुक रिलीज 26 छक्के, और ऑथर्ड बाय श्री बच्चन राम अरोड़ा। और मैं इसको अपने घर में ले जाऊंगा और वहां पर इसको एक अच्छे स्थान पर, जहां पर सभी देख सकें, वहां पर इसको मैं रखूंगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।
दिनेश नेक्स्ट शुरू करवाओ। कंप्यूटर मैडम को नेक्स्ट शुरू करे। Our president sir for him. Vyas sir? Vyas sir, getting my voice? Sir, kindly have the book in your hand so on screen so that everybody can see that, and it is finally released. Yes. Thank you so much. Thank you so much. आप खेड़ा प्रिंसिपल मैडम, बाकी स्टाफ मेंबर, हमारे स्कूल के प्यारे बच्चों, ये किताब, ये 26 छक्के बुक मैंने मार्च में 2019 में लिखने की कोशिश की। मैंने 20 छक्के लिख करके छोड़ दिए। अब कोरोना पीरियड में मैंने 6 छक्के और लिखे और ये लिख करके ये किताब पूरी करी। मेरा कोई मन नहीं था पहले तो भी ऐसी किताब लिखी जाएगी, लेकिन हमारे पिता, हमारी माता स्वामी मुद्दे महाराज, हमारे गुरु महाराज की कृपा से ये किताब पूर्ण हो गई और आज आपके सामने इस किताब को तरुण बजाज साहब ने रिलीज किया। ये जब आप पढ़ेंगे, कुछ आप अपने कमेंट्स करेंगे। मैं इसके बारे में कहता अच्छा नहीं लगता। मैं तो आपसे यही प्रार्थना कर सकता हूँ कि सामाजिक चेतना बहुत जरूरी है, सोशल अवेयरनेस बहुत जरूरी है, राष्ट्र को समर्पित होना बहुत जरूरी है, भेदभाव मिटाना भी बहुत जरूरी है। आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तब आप बड़े कमेंट्स देंगे, भाई कोई छक्का लगा रहा है, कैसे हमारा समय व्यर्थ किया है। तो मैं चाहूंगा आप इसको पढ़ें, बच्चे भी पढ़े, नौजवान पढ़े, बुजुर्ग पढ़े, हर एक के पढ़ने के लिए बहुत अच्छी ये किताब है। मैं दोबारा शब्द वापस लेता हूँ, बहुत अच्छी किताब है। जब आप पढ़ के कहेंगे अच्छी किताब है तब ये मानेंगे। दूसरा, मैं लिख के आपसे कहना चाहता हूँ कि आप भी ऐसा प्रयत्न करें, बच्चे प्रयत्न करें, बच्चे अच्छे लेखक बने और वो राष्ट्र को समर्पित होकर के लिखे। जब राष्ट्र को समर्पित होकर के लिखेंगे तब उनका जीवन जो है राष्ट्र को समर्पित माना जाएगा। हमारे गेस्ट साहब ने मेरे बारे में काफी कुछ कहा, मैं इसके लायक तो नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ हुआ हमारे भाइयों के सहयोग से, परिवार के सहयोग से, सदाव के सहयोग से, प्रिंसिपल के सहयोग से हुआ। आज भी जो आपको नजर आ रहा है इसमें इन सब का सहयोग है, मेरे अकेले के कतरों से ये नहीं हुआ है। तो मैं आज इस डिस्टिंग्विश्ड गैदरिंग के सामने यही प्रार्थना करता हूँ कि हर बच्चा, हर भारतवासी अपना जीवन अपने राष्ट्र को समर्पित करे और ऐसी लेखनी लिखे जिससे कि बाकी लोग इसके ऊपर चल सके। मुझे इस बात का बड़ा फख्र है कि आज इस मौके पर सब लोग एकत्रित हुए और जो यहाँ पर हमने नहीं बुला पाए इस कोरोना की वजह से, उन्होंने घर बैठ कर इस प्रोग्राम को देखा। मैं आपसे इस समय पर आने पर, हौसला बढ़ाने पर, इन 26 छक्के के आपके सामने चीफ गेस्ट द्वारा पेश किए जाने पर आपने बहुत उत्साहित किया, इसके लिए मैं आपका बड़ा धन्यवाद दूँ। और आपसे बच्चों से भी कहता हूँ कि अपने जीवन को इस शिक्षा में और राष्ट्र को मजबूत करें और हम राष्ट्र के ही सेवक हैं, राष्ट्र के सिपाही हैं। जब हम राष्ट्र के सिपाही रहेंगे
तो हमारा सोच विचार भी राष्ट्र तरफ है। हम धर्मपरायण हो, राष्ट्रपरायण हो, समाजपरायण, ये तीन चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम समाज के परायण रहेंगे, देश के परायण रहेंगे, धर्म के परायण रहेंगे, तो हमारा ऊंचा जीवन होगा, ऊंची उड़ान होगी और ऊंची सोच होगी। मैं ज्यादा समय ना लूं, आप सबके इस मौके पर आने पर और भगवान की ये कृपा हो जाने पर बीच में कुछ खुले आई, लेकिन प्रभु ने कृपा की, इन महात्माओं ने कृपा की, उनसे रुक गई। भाई नहीं, ये अच्छा काम है, सच्चा काम है, सच्चा काम है, इसमें कोई विघन कुदरत ने भी नहीं डाला, बल्कि कुदरत ने इतना महान सहयोग किया। हम कुदरत के भी नहीं है, कुदरत ने हमारे साथ बड़ी कृपा की। इन शब्दों के साथ मैं आप सबका उत्साहित करने पर, इस मौके पर आने पर दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Now, in front of you all, the book is shown by the sir. Book cover. तेरा नाम तो मैं भूल ही गई। ओ सॉरी मैं भूल गई थी। चल Publishing of book is like a stuffing a note into a bottle and hurling it into the sea. Some bottles drawn, some from sea to land where the notes are read and that possibly cherished. चल Thank you. बस एक सवाल, मातृशक्ति यदि नहीं बची, बाकी यहाँ रहेगा कौन? प्रसव वेदना लालन पालन सब दुख दर्द सहेगा कौन? मानव हो तो दानव त्यागो, त्यागो फिर ये उत्तर दो, इस नन्ही सी जान के दुश्मनों को इंसान कहेगा कौन? इंसान कहेगा कौन? This is very important part of the society that everybody wants to be a father or a mother of only a son. Why daughters are not be equal to son in the eye of society. So for you all, a small look at Pathshala skit is going to be present on stage by our school students. These things are accessories that they can be used in the Save Girl Child skit. Yes, sir. Hello, hello, hello. Hello. बंद तो नहीं हो जाएगा ना? अभी तो 50% 50% अभी तो 5 साल दूसरा बेटियां 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 घर की रौनक होती है बेटियां, माँ बाप का अभिमान होती है बेटियां, समाज का ताज होती है बेटियां। ना जाने क्यों बेटियों के जन्म से डरते हैं लोग, ना जाने क्यों बेटियों के जन्म से डरते हैं लोग। शायद कुरीतियों ने अपने पर इतने फंसाए लिए हैं कि बेटियों के जन्म से डरते हैं लोग, जैसे कि दामिनी केस। तो आइए आप सबके सामने प्रस्तुत करते हैं एक छोटी सी एकांत।
आ गया? क्या आ गया? आज का दिन तो बड़ा हेक्टिक था, सर में दर्द हो रहा है। अरे क्यों, क्या हुआ? बस कुछ नहीं, ऑफिस का ही काम। लो कोई नहीं, आप पानी। अरे वो मेरी रिपोर्ट का क्या हुआ? अरे मैंने अपने दोस्त को क्या रखा है, वो जल्दी दे देगा। पता है, मैं तो कब से रिपोर्ट का वेट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तो बेटी ही चाहिए, हमारे घर में बेटी ही आएगी। अरे तेरे बोलने से क्या होता है, हमारे घर में तो बेटा ही आएगा और वो सूरज की तरह चलती ना। मैंने दोस्त का नाम भी सोच के रखा है। अरे बेटू से क्या होता है, बस बच्चा स्वस्थ होना चाहिए। नहीं मामा नहीं, मुझे बेटी नहीं चाहिए। लेकिन क्यों, मैं पूछती हूँ क्यों? अरे घर का खर्च उठाओ, ये वही चुकाऊंगा, उसके दहेज के लिए पैसे इकट्ठे करूँ। रोहित, जमाना बदल गया है, आने वाले टाइम में दहेज का कोई चक्कर ही नहीं होगा। अरे तुम देख रहे हो तो माहौल कितना खराब हो चुका है। तुम भी ऑफिस जाते हो, मैं भी ऑफिस जाता हूँ। अगर पीछे से ऊँच नीच होगी तो मोहल्ले को क्या मुंह दिखाएंगे। ओहो, मेरे मम्मा पापा भी तो जॉब करते थे, उन्होंने भी तुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया है ना। पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी, अब सिंगल फैमिली होती है। रोहित, आप पढ़े लिखे होकर भी ऐसी बातें करते हो। अरे पढ़ा लिखा हूँ तो ऐसी बातें कर रहा हूँ। अब तुम देख रही हो बाप मुझे क्या लग रही थी बेचारी की। तो क्या तुम इससे से जीना छोड़ देंगे क्या? इसी डर के कारण 1000 के मुकाबले 770 लड़कियां बच गई हैं। अगर हर कोई आपकी तरह सोचने लगा ना, तो आने वाले टाइम में 1000 के मुकाबले सिर्फ 100 लड़कियां बच जाएंगी। सिर्फ 100 लड़कियां, रोहित, सिर्फ 100। 100 लड़कियों का क्या होगा? घर से निकलना तो मुश्किल हो जाएगा उनका। लोग नोच खाएंगे उन्हें। इसे रोकने के लिए किसी ना किसी को तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी ना। तो मैं शुरुआत नहीं करूँगा, पहले सारी की स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचाऊं। अब बेटी का बोझ उठा के बच्ची खुशी जिंदगी स्ट्रगल में गुजार दो। रोहित, आप बेटी को बोझ क्यों समझ रहे हो? आजकल लड़का लड़की में फर्क ही क्या है? अरे लड़का लड़की में बहुत फर्क है। लड़का मंच बढ़ाता है और लड़की टेंशन। बजाओ बस फोन फोन फोन। हेलो भाई रोहित, तू कहाँ पर है? भाई, घर पे ही था। भाई जो तूने काम कहा था वो मैंने कर दिया है, आजा रिपोर्ट लेने नीचे। भाई तू ऊपर आ जाना, फिर बेटे का बाप बनने वाला हूँ। भाई आ जाना तू नीचे। अरे भाई तू ऊपर आ जाना। चल भाई, तू कह ही रहे तो अब तेरे हुक्म को तो मना कर नहीं सकता। आ गया आ गया। और भाई रोहित, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया है। बैठ, पानी लिया मुझे। लाई। और भैया, घर पर सब कैसे हैं? ठीक है भाभी जी। भैया, आपने रिपोर्ट लाने वाले से उसका क्या हुआ? हाँ लो भाभी जी आपकी रिपोर्ट। वाओ, यस, मैंने कहा था ना मुझे बेटी ही चाहिए, हमारे घर में बेटी ही आने वाली है। क्या बेटी? नहीं, मेरे जीते जिस घर में बेटी नहीं आ सकती। बेटा फर्क नहीं करना चाहिए भाई, वो एक ही समान होते हैं। नहीं भाई नहीं, तेरे को क्या पता भी। हेलो डॉक्टर साहब, 10 मिनट में लेकर आ रहा हूँ। ओके भाई रोहित, बेटा बेटी में भेदभाव नहीं करना चाहिए भाई, समझा कर। नहीं भाई नहीं। देख भाई रोहित, भाभी जी को क्या हो गया? अरे क्या हो गया इसको? पानी लिया भाई। ये यार, अरे फटाफट इसको हॉस्पिटल लेके चले। चल कैसे हो गए आप? छोड़। एवरीथिंग इज ऑल राइट। जो आपने मुझे काम कहा था वो हो जाएगा, पर उसके लिए आपको थोड़ा पैसों का इंतजाम। ओके। पुलिस और है सब। अरे कुछ नहीं। ये प्रेशर काटने जो मैं कौन करे? नहीं, आजकल के लोग ऐसे शर्म नहीं आती इनको, लोग कहते हैं कानूनी जुर्म है। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज बचा लीजिए मेरी बच्ची को। उस नन्ही सी जान को छोड़ी दुनिया में आई तक नहीं है।
अरे दरिंदो, अगर बेटियों से इतनी नफरत है तो अपनी माँ को क्यों नहीं मारा, अपनी बहन को क्यों नहीं मारा, पत्नी को क्यों नहीं मारा? अगर बेटा वंश चलाता है ना तो बेटी भी एक अंश है, बेटी भी एक अंश है। अरे ज्योति मेरे को आ गया समझ, बेटा और बेटी में कुछ अंतर नहीं रहता, वह एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, इनके बिना जीवन की कोई भी गाड़ी नहीं चल सकती। हमें बेटा और बेटी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। रोहित आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बेटियां तो माँ बाप की रानियां होती हैं, मीठी मीठी प्यारी प्यारी कहानियां होती हैं। अगर हमें इस समाज को बचाना है तो हमें उन्हें बचाना ही होगा, हम सबको मिलकर उन्हें बचाना होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। Students, be in discipline. वो वहीं खड़े रहो, आप चलाओ। You can stand in the corridor, but in silent way. So now we are going. Our school students are going to perform song Tamanna Sneha. जो शब्द बच्चे सर से कह नहीं पाए थे उनके जन्मदिन पे, वो इस गाने के जरिए हम हमारे प्रेसिडेंट सर को संदेश देना चाहते हैं। नहीं रुकी। स्टार्ट करो। किसने शुरू करना? स्टार्ट करो। अब की उड़ाते झांझला सूरज को जाके आसमां पे ऐसी उड़ानी है नजर तुझसे पूछे आगे इतनी क्यों उड़ा जाते मंदिरों पे हवाओं से तेरी यारी है जब तेरी बारी है जब तेरी बारी है जब तेरी बारी है।
लक्ष्य को हर हाल में पाना है, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। Very nice performance. A man is like a novel until the last page. Congratulations. You don't know how it will end, otherwise it wouldn't be worth reading. प्रोग्राम तो ठीक हो गया जो मेन था। हाँ, और मिजाज साहब बहुत बढ़िया Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're proud to be. Congratulations and celebrations. I want to rock now. हाँ, पहले मैं 2 बार बोल चुका, फिर बोल रहा हूँ। अच्छा, Yes, girls, be ready for national anthem. ना हम तो बैठे हैं अभी। National anthem, girls, be on सारे stage. यहाँ बमन में है। और जल्दी से जल्दी के Please, all the students stand on your seat. Silently. भारत माता की जय। अभिवादन। जय हिंद। स्कूल का स्टाफ, बच्चे, मुझे आज इस बात की बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मेरे स्कूल में, आपके स्कूल में आज ये इस पुस्तक के विमोचन पर आप सब एकत्रित हुए और तरुण बजाज साहब ने इस मौके पर अपना कीमती समय देकर इस पुस्तक को विमोचन करने के लिए अपना समय दिया और इसकी शान बढ़ाई और हमारे स्कूल की शोभा बढ़ाई। और इस पुस्तक का जो हमारा पर्पज़ है सामाजिक चेतना के लिए है, ताकि समाज में चेतना आए और लोग इसका आनंद ले सके जीवन का।
और राष्ट्र समर्पित हो सके। मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने इतने ज़्यादा इकट्ठे होकर के हमारा उत्साह बढ़ाया और इस पुस्तक विमोचन पर आप आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।